Krishna Krishna Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Ram Rama Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Ram Rama Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare। कटा 18 जनवरी 1984। तो इस लेटर में गुरु महाराज जी शरणागति को बड़ी विस्तृत रूप में बता रहे हैं। मैं इस लेटर को यहां से उद्धृत कर रहा हूं। गुरु जी ने लिखा, माय डियर श्री राजेंद्र मिश्रा, रिसीव्ड योर लेटर डेटेड नील एड्रेस टू कैलकाटा मठ एड्रेस and noted the contents. After my stay at Chandigarh Mutt during Damodar Vrat, participation in the annual function of Dehradun Mutt and temple installation function of Gokul Mahavan Mutt and preaching in Delhi, I returned Calcutta. On my return to Calcutta, almost immediately I left for Agartala by first flight at the repeated request of Agartala devotees to deliver speeches. I stayed at Agartala Mutt for 10 days. I was heavily engaged here as I had to speak daily 4 times, morning, noon, afternoon and night. I returned to Calcutta by morning flight on 1st January and again left Calcutta to participate in the annual function of our branch mutt. जहाँ पे गुरु महाराज जी ने अपना सारा प्रोग्राम डिटेल में किस प्रकार अगरतला में एक दिन में 4 प्रोग्राम हो रहे हैं। इसके बाद गुरु जी नेक्स्ट पेज पे बता रहे हैं, द एनुअल फंक्शन ऑफ कैलकाटा मठ विल बी सेलिब्रेटेड फ्रॉम 18th January to 22nd January. 5 religious meetings will be held at the lecture hall of the mutt, in which many dignitaries of Calcutta will be present. तो आप जानते ही हैं कलकत्ता में जो वार्षिक महोत्सव होता है उसमें हर रोज कोई ना कोई डिग्नेटरीज इनवाइट किए जाते हैं जो अपना प्रोग्राम में सभापति का आसन ग्रहण करते हैं। आफ्टर द एनुअल फंक्शन ऑफ कैलकाटा मठ आई शैल लीव फॉर आसान टूर ऑन 26 January to visit 4 branch mutts of the institution and also to participate in the annual function of the 3 mutts. I shall be away from Calcutta for about a month. इसके बाद गुरु महाराज जी ने अपना उपदेश लिखा, This Brahmand of 14 worlds is the prison house of all enslaved jivas who are averse to the service of Supreme Lord Shri Krishna. Jivas in their real selves are the eternal servants of Supreme Lord Shri Krishna. It is an offense for them to become averse to Shri Krishna. Mahamaya, illusory energy of Shri Krishna, has built this Mayik Brahmanda for the punishment of the offenders who are reluctant to serve Shri Krishna. The culprits cannot hope to get peace in this prison house, Brahmanda. The root cause of our afflictions is forgetfulness of our relation with Shri Krishna. So to eradicate the root of the sufferings, threefold afflictions, we should submit to Shri Krishna completely and unconditionally. तो आप देख रहे हैं गुरु महाराज जी हमारे इस संसार में दुखों का कारण किस प्रकार कंक्लूड करते हैं कि हमें अपने ही कर्मों का फल सुख या दुख रूप में मिलता है। स्टार्ट वीडियो खत्म है ना, और इन दुखों से पार होने का उपाय गुरु जी ने बतलाया, we should submit to Shri Krishna completely and unconditionally. This is very, very important.
शरणागति की जो ये शिक्षा गुरु जी ने लिखी, ये गुरु महाराज जी को बहुत प्रिय लगती है। मुझे याद है एक बार गुरु महाराज जी ने लिखा था कि जब मेदिनीपुर मठ में श्यामानंद गुड़िया मठ में जायावर गोस्वामी महाराज ने अनाउंस किया कि आज हमारे गुरुजी का नाम लेके वो भी हरि कथा कहेंगे, तो गुरु महाराज जी कहते कि मेरी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं कैसे बोल पाऊंगा, और वो भी परम गुरु महाराज यानी गुरु जी के सामने कैसे बोल पाऊंगा। तो गुरु महाराज जी ने बतलाया कि मैं बचपन से बड़ा इंट्रोवर्ट स्वभाव का था, वेरी वेरी इंट्रोवर्ट, और कहते मैं घर में भी किसी से बात नहीं करता था, बहुत कम बात करता था, स्कूल में भी ज्यादा घुलता मिलता नहीं था, एलूफ रहता था वर्ल्डली मैटर से। और मैं मठ में भी आया तो यही सोच के आया, कहते अगर मुझे जरा भी भान होता कि मैं पहले यहां मठ में जाके मुझे स्पीच देनी पड़ेगी, तो कहते मैं कभी आता ही नहीं। तो कहते मेरे को जब यायावर गोस्वामी महाराज ने घोषणा कर दी कि आज वो बोलेंगे, तो मेरी तो कहते ऊपर की सांस ऊपर, नीचे की नीचे रह गई, और मैं सभा में पीछे बैठ गया। वैसे तो गुरुजी सबसे आगे बैठते थे, डायरी में नोट करते थे, लेकिन जिस दिन मिदनापुर मठ में श्यामानंद गौड़िया मठ में यह अनाउंसमेंट की गई कि आज गुरु महाराज जी लेक्चर देंगे, तो कहते मैं तो बस पीछे छुप के बैठ गया। कहते गुरु जी का लेक्चर हो गया, परम गुरु जी का, उसके बाद यायावर महाराज जी का समाप्त होने लगा, तो मुझे लगा मैं बच गया, आज तो मैं बच गया किसी प्रकार से। कहते जैसे यायावर महाराज जी ने कंक्लूड किया, तो उन्होंने एकदम अनाउंस कर दिया कि अभी गुरु जी का नाम लेके, जो उनका ब्रह्मचारी नाम था आप सब जानते हैं, तो अभी वो बोलेंगे। कहते गुरु जी कहते मैं बस स्तब्ध रह गया, कुछ समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। तो मैंने कहते हाथ जोड़े नित्यानंद जी को पुकारा। आप जानते ही हैं गुरु महाराज जी अपनी वंदना में प्रार्थना में एक प्रार्थना जरूर करते हैं, संकर्षण कारण तयशाई गर्भोदशाई चपयवधिशाई शेषस्त जस्तान सकला सनित्यानंद कराम शरणम नमस्ते। तो कहते मैंने जैसे ये प्रार्थना की, मेरे दिमाग में भक्ति विनोद ठाकुर जी की शरणागति गीति आ गई। तो ये गुरु जी की फर्स्ट स्पीच थी, एंड द टॉपिक वाज शरणागति, सरेंडर, आत्मसमर्पण। गुरु जी ने उस गीति को पढ़ा और एक्सप्लेन किया। आज इस मोहिनी एकादशी में हम आज के इस भयावह समय में शरणागति की उस शिक्षा को याद करते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी, सो पार्षद स्वीय धाम सह अवतरी। तो भगवान श्री कृष्ण चैतन्य जीवों के प्रति दया परवश होकर अपने पार्षदों और धाम नवदीप धाम के सहित इस धराधाम में अवतरित हुए। अत्यंत दुर्लभ प्रेम करी बारे दान, शिखाए शरणागति भक्तेर प्राण। तो वो जो दुर्लभ प्रेम, जो रागानुगा भक्ति, जो ब्रज प्रेम, जो मधुर भाव, जो राधा रानी गोपियों का जो रिजर्व था, जो ब्रजवासियों को छोड़ के भगवान श्री कृष्ण ने किसी को नहीं दिया। अत्यंत दुर्लभ प्रेम करी वारे दान, वही प्रेम दान करने के लिए महाप्रभु इस धराधाम पे प्रकट हुए। शिखाए शरणागति भक्तेर प्राण। क्या किया? भक्ति की प्राण जो शरणागति है उसकी शिक्षा दे रहे हैं महाप्रभु। क्या शिक्षा दे रहे हैं? दैन्य आत्मनिवेदन गोप्त्रिते वरन,
अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन, भक्ति अनुकूल मात्र कार्य स्वीकार, भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जन अंगीकार, षडंग शरणागति हैव यहार, ताहर प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार, रूप सनातन पदे दंते तृण करी, भक्ति विनोद पड़े दुई पद धरी, कांदिया कांदिया बले अमित अधम, शिखाए शरणागति कर है उत्तम। ये जो भक्ति विनोद ठाकुर जी की गीति को गुरुजी एक्सप्लेन किए, ये उनका फर्स्ट लेक्चर इन मठ लाइफ एट मिदनापुर मठ हुआ, और इसकी रेपिटेशन हुई अमृतसर में। पंजाब का जब प्रोग्राम हुआ, गुरु महाराज जी, परम गुरु महाराज जी के साथ पंजाब में पधारे हैं, तो गोल्डन दुर्गियाना मंदिर में ये प्रोग्राम हुआ, और वहां पे भी गुरु महाराज जी को लेक्चर देने को बोला गया, और वो फर्स्ट हिंदी लेक्चर था गुरु जी का। मिदनापुर में तो उन्होंने बांग्ला में लेक्चर दिया, लेकिन ये हिस्टोरिकल है कि अमृतसर में गुरु महाराज जी ने फर्स्ट लेक्चर पंजाब में हिंदी में दिया, और वहां पे भी यही गीति श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी, सौ पार्षद सिए धाम सहे अवतरी, इसी गीति को गुरु महाराज ने याद किया। तो क्या गुरुजी इसमें बता रहे हैं, शरणागति के 6 दैन्य आत्मनिवेदन गोप्तृत्व वरण, दीनता, आत्मनिवेदन करना, भगवान को अपने पालनकर्ता के रूप में वर्ण करना, श्री कृष्ण मेरी अवश्य रक्षा करेंगे ऐसा दृढ़ विश्वास रखना, एवं भगवत भक्ति के जो अनुकूल कार्य हैं उन्हें स्वीकार करना, और जो प्रतिकूल कार्य हैं उन्हें छोड़ देना। ये 6 अंगों वाली शरणागति जिनकी होगी, उन्हीं की प्रार्थना श्री नंद नंदन सुनते हैं। अर्थात हमारे पूज्यपाद निष्किंचन महाराज जी का एक फेवरेट शेर था। निष्किंचन महाराज जी कहते थे, प्रभु सुनते हैं वो प्रार्थना जो दिल से होती है, प्रभु सुनते हैं वो प्रार्थना जो दिल से होती है, मुश्किल तो है कि ये बड़ी मुश्किल से होती है। तो गुरु महाराज जी ये सुन के मुस्कुराते थे। तो कह रहे हैं कि नंद नंदन उसी की प्रार्थना सुनते हैं जिसके अंदर ये 6 शरणागति के भाव रहे। श्री भक्ति विनोद ठाकुर रूप गोस्वामी प्रभु और सनातन गोस्वामी जी के चरणों में दांतों में तिनका लेकर अत्यंत दीनता के साथ गिर जाते हैं और रोते रोते प्रार्थना करते हैं कि मैं तो अधम हूं, शरणागति की शिक्षा देकर मुझे उत्तम बना लीजिए। So here in this Giti, Bhakti Vinod Thakur has taught us the 6-fold Sharanagati. Now this 6-fold Sharanagati is given in the page 3 of the letter I was quoting, and Guru Maharaj has given very simple explanation of this. आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे गुरुजी की लेटर, यहां मैं पढ़ के सुना रहा हूं। शरणागति is of 6-fold. We are to practice it. We are to accept all that is congenial for. तो शरणागति 6 प्रकार की है, हमें इसका अभ्यास करना है जीवन में। और ये जो अभ्यास है आज की परिस्थिति में और भी इंपॉर्टेंट हो गया। पहला है अनुकूल को ग्रहण करना। भक्ति के अनुकूल क्या है? वो जो 4 नियम गुरुजी जब हमको हरिनाम दीक्षा दिए हैं तो 4 नियम बतलाए हैं, आप सब जानते हैं। पहला, महाप्रसाद इज डाइट एंड हरि नाम इज द मेडिसिन। यानी महाप्रसाद के रूप में ही हम कुछ ग्रहण करें, अन्यथा बाकी किसी चीज को हम ग्रहण ना करें। और दैट मीन्स ओनली वेजिटेरियन
and that also sattvic vegetarian, that will not include onion and garlic. ऐसा खाना, ऐसा भोजन जिसमें प्याज और लहसुन का इस्तेमाल ना हो, उसको तुलसी पत्र के साथ भगवान को निवेदित करना और प्रसाद रूप में ग्रहण करना, ये शरणागति के अनुकूल बातों में एक बात है। और प्रतिकूल क्या है? जो अभक्ष्य वस्तुएं हैं वो नहीं खानी। इसको छोड़ के जो भी है वो अभक्ष्य है। नॉट ओनली नॉन वेजिटेरियन बट ऑल्सो इन वेजिटेबल्स ऑल्सो वी डोंट टेक ओनियन एंड गार्लिक्स। तो ये अनुकूल को ग्रहण करने में तिलक धारण करना, कंठी धारण करना, ये भक्ति के जो अनुकूल नियम, इनको करना मीन्स कि हम शरणागति का भाव रख रहे हैं। दिस इज द प्रूफ दैट वी आर ट्राइंग टू बी सरेंडर्ड। नंबर 1, एक्सेप्ट ऑल दैट इज कंजीनियल फॉर प्योर डिवोशन। तो ज्यादातर हमारी समस्या ये रहती है कि सोसाइटी में हमें ये प्रश्न किया जाता है कि इसमें क्या है, इसमें क्या डला है, ये तो सब्जी है, इसमें क्या है, वो क्यों नहीं लेते, वो क्यों नहीं लेते। तो हमारा आंसर केवल यही है कि हम वही ले सकते हैं जो भगवान श्री कृष्ण को हम भोग निवेदित कर सकते। इसलिए हम चाय कॉफी भी नहीं लेते, क्योंकि उसका भी भोग नहीं निवेदित कर सकते। नंबर 2, गिव अप ऑल दैट इज नॉट कंजीनियल, यानी जो प्रतिकूल है भक्ति के, उसे त्याग देना। फॉर एग्जाम्पल, जो चीजें 4 नियमों में बताई गई निषेध, उसको त्याग देना। जैसे द्यूतम, श्रियम, श्रीम, सोनम, शूनम, चतुर्वेद, वो जो श्लोक है, 4 प्रकार की वस्तुएं, उनको त्यागना। और सबसे ज्यादा प्रतिकूल है एकाग्रता को त्याग करना। जो हम बहुत सारे काम एक साथ करते हैं, वो हमारे भक्ति के प्रतिकूल है। ये पॉसिबल नहीं है कि हमारा माइंड मल्टीटास्किंग करे। एक तरफ हम हरि कथा, गुरु कथा श्रवण करें और दूसरी तरफ हम मोबाइल में अपने मैसेजेस चेक करें। इट्स नॉट पॉसिबल। हम दोनों तरफ नहीं लग सकते। तो ये एकादशी का कहते हैं करोड़ों गुना फल मिलता है, क्यों ना हम इसमें पूरा ध्यान दें। तो ये प्रतिकूल को त्यागना है। थर्ड, should have firm faith that Shri Krishna will protect us under all circumstances. ये पूर्ण रूप से विश्वास होना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण हमारी हर परिस्थिति में रक्षा करेंगे। देखो, गुरु महाराज ने कितनी सिंपल शब्दों में बातों को लिखा है, हर आदमी इसको समझ सकता है। Everyone can easily understand these points. Very simply written by our Guru Maharaj. Should have firm faith that Shri Krishna will protect us under all circumstances. कहां से प्रोटेक्ट करेंगे भगवान? From outside foes and inside foes. बाहरी शत्रु और भीतर के शत्रु। और इनसाइड फोर्स के आगे ब्रैकेट में लिखा पैशंस, हमारे अंदर उठने वाली जो दुनिया भर की भौतिक इच्छाएं, भौतिक वासनाएं हैं, ये हमारे भीतर के शत्रु और बाहर के जो जाने अनजाने, ज्ञात अज्ञात शत्रुओं से भगवान ही हमारी रक्षा करेंगे। इस बात पे अटल विश्वास होना चाहिए। ये शरणागति का तीसरा लक्षण है। फोर्थ, He is the only sustainer and maintainer of our real and apparent selves. गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही हमारे पालक हैं। योग क्षेमम वहां में हम, भगवान हमारे हर प्रकार से गोप्तृप्ते वरण करने वाले, यानी ही इज द सस्टेनर एंड मेंटेनर ऑफ आवर रियल एंड अपेरेंट सेल्फ। तो ये भगवान को अपने पालक
कर्ता के रूप में वहन करना। ये चौथा लक्षण है शरणागति का। और पांचवा है वी ऑल बिलोंग टू हिम, दैट इज वी आर ऑफ हिम। हम सब भगवान श्री कृष्ण के हैं, हमारा संबंध भगवान के साथ है और हम उनके ही हैं। इसको बोलते हैं आत्मनिवेदन। दैन्य आत्मनिवेदन गोप्तृप्ते वरन अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन। तो गुरु महाराज जी कहते हैं वी ऑल बिलोंग टू हिम, दैट इज वी आर ऑफ हिम, एच कैपिटल आत्मनिवेदन। ये फिफ्थ जो शरणागति। सिक्स्थ है वी शुड गिव अप ऑल मटेरियल ईगोज, थिंक दैट वी आर स्पिरिचुअल स्पार्क्स, minutest parts of the marginal potency, tatastha shakti of Supreme Lord Shri Krishna. That is, we should not have mundane vanities. We should be humbler than the blade of grass. Sharanagati is the best medicine for cure of all afflictions and for solution of all problems. तो last जो sixth बताया, इसमें दैन्य की बात कही। क्या कहा? हमें अपना अहंकार, ईगो, मैं ये शरीर हूं, मैं फलाना हूं, ये जो मटेरियल ईगो है उसको एकदम त्यागना पड़ेगा। वी शुड गिव अप ऑल मटेरियल ईगोस। फिर लिखा थिंक दैट वी आर स्पिरिचुअल स्पार्क्स। हम क्या हैं? जैसे सूर्य से छोटी छोटी चिंगारी निकलती है, इसी तरह ये आध्यात्मिक स्पार्क यानी एक चिंगारी के रूप में हम हैं। माइन्यूटेस्ट पार्ट्स ऑफ मार्जिनल पोटेंसी, भगवान की तटस्था शक्ति के बड़े ही परमाणु अंश, बड़े छोटे सूक्ष्म अंश के रूप में हम हैं भगवान श्री कृष्ण के। और इसका अर्थ ये है कि हमारे अंदर किसी प्रकार का घमंड कि हम संसार के हैं नहीं रहना चाहिए। क्या होना चाहिए? वी शुड बी हम्बलर देन द ब्लेड ऑफ ग्रास। हमें तिनके से भी अपने आप को दीनहीन समझना, जैसे इसको शरणागति दैन्य कहा गया। और ये अगर 6 हम कर पाते हैं तो लास्ट लाइन गुरुजी लिख रहे हैं शरणागति इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर क्योर ऑफ ऑल एफ्लिक्शंस एंड फॉर सॉल्यूशन ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स। देखिए बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी सॉल्यूशनें बता रहे हैं। अभी कोरोना वायरस फैला है, किसी के पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। और बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टरों को, बड़े बड़े शक्तिशाली व्यक्तियों को भी ये वायरस छोड़ नहीं रहा। अभी मैंने आज ही सुना कि दिल्ली के मोती नगर में हमारे कोई मठ के परिचित कोई माता जी, उनको पॉजिटिव हुआ और उनका शरीर उन्होंने इस वायरस के कारण छोड़ना पड़ा। और उनके घर के एक और सदस्य को पॉजिटिव हो गया। तो अभी देखो ये वायरस की आहट बिल्कुल बिल्कुल पास तक हो गई है। कबीरा गर्व न कीजिए काल गहे करके, ना जाने की तुम्हारी है क्या घर क्या परदेश। तो सब जीवों के सिर के बाल को काल भगवान ने अपने हाथ की मुट्ठी में दबा के रखा हुआ है और कोई पता नहीं किसको वो कहां पे मृत्यु दंड देंगे, घर में के बाहर। आज की जो भयानक स्थिति में अगर कोई उपाय है तो वो गुरु महाराज जी की ये जो पुड़िया शरणागति की, जो गुरु महाराज ने कितना मतलब सिंसियरली हमको बतलाई है कि 6 प्रकार की ये शरणागति है। दैन्य आत्मनिवेदन गोप्तृत्व वरन अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन।
भक्ति अनुकूल कार्य मात्रे स्वीकार, भक्ति भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जन अंगीकार। ये जो षडंग शरणागति को गुरु महाराज ने बार बार बताया और इसके बारे में क्या बोला, ये बेस्ट मेडिसिन है। आज कोई मेडिसिन नहीं है कोरोना वायरस की शरणागति को छोड़ के। इसका ये अर्थ नहीं है कि हम प्रिकॉशंस नहीं लेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग भी करनी है, हाथ भी बार बार धोने हैं, पूरे प्रिकॉशंस लेने हैं, लेकिन उसके साथ शरणागत होने के लिए गुरु जी कह रहे हैं शरणागत होंगे तो भगवान रक्षा करेंगे। बेस्ट मेडिसिन फॉर क्योर ऑफ ऑल एफ्लिक्शंस एंड सॉल्यूशन ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स। कितना कष्ट है संसार में। हमारे एक जानकार व्यक्ति जो पुजारी का काम करते हैं, मंदिर बंद है, किसी गांव में रहते हैं, उनका फोन आया कि घर में खाने को कुछ नहीं, चूल्हा जलाने के लिए कुछ नहीं है, कोई वस्तु नहीं रही, क्योंकि पिछले इतने दिनों से घर में बंद है। तो ऐसी सिचुएशन में उन्होंने फोन किया, कहते कभी हमने किसी को फोन नहीं किया। तो लोगों को कितना कष्ट हो रहा है, लेकिन वो शरणागत हैं, इसलिए भगवान उनका देखने वाले हैं, भगवान उनका ध्यान करने वाले। ब्रज के हमारे पंडा लोग सब यात्री बंद हो गए, सब उनका जीविका का साधन बंद हो गया, वो भी बेचारे क्या करें, कहाँ जाएं। तो गुरु महाराज जी के संबंध से उनकी भी सेवा की जा रही है। और ग्वालपाड़ा में तो आप जानते ही हैं, जितने हमारे गांव गांव में मठाश्रित गुरु भाई, परम गुरु महाराज जी के शिष्य, गुरु जी के शिष्य, वहां तक हमारे ग्वालपाड़ा गोकुल धाम गुरु जी के जन्म स्थान से हमारे वृंदावन चंद्र प्रभु और अपने श्रीधर प्रभु और करुणा में प्रभु, बिट्टू प्रभु, ये सब लोग वहां जाके सबकी सहायता कर रहे हैं। गुरु महाराज जी सबकी हेल्प कर रहे हैं। तो शरणागति जो है ये बहुत आज के लिए रेलेवेंट है। बार बार भगवान कहते हैं तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारता तत्प्रसादात् परां शांति स्थानम प्रापस्यसि शाश्वतम। तो मुझे बार बार प्रश्न आते हैं, ये क्या है शरणागति? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। ये वो श्लोक है जो परम गुरु महाराज जी ने गुरु महाराज जी को ग्वालपाड़ा में प्रथम मीटिंग में सुनाया। तो ये शरणागति है क्या? आज गुरु जी ने कितनी सिंपल लैंग्वेज में शरणागति बता दी कि ये 6 प्रकार के जो लक्षण जिसके अंदर हैं उसके अंदर शरणागति। लेकिन मैं ये पक्का जानता हूं कि ये 6 लक्षण सुनने के बाद भी समझ में नहीं आता कि शरणागति क्या है, हमारे अंदर वो शरणागति कैसे आएगी। अब कहते तो हैं, हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए, हूं अधम अधीन अशरण अब शरण में लीजिए। खा रहा गोते हूं मैं भव सिंधु के मझधार में, आसरा है दूसरा ना कोई इस संसार में। मुझ में है जब तप न साधन और नहीं कुछ ज्ञान है, निर्लजता है एक बाकी और बस अभिमान है। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए, हूं अधम अधीन अशरण अब शरण में लीजिए। ये पहले नहीं था, बाद में 97-98 से गुरुजी ने एक बार इसको सुना और इसको अप्रूव कर दिया। तो मुझे याद है जम्मू में गुरु महाराज जी आए और अग्रवाल धर्मशाला में ठहरे, वहां पे प्रोग्राम हुआ। वहां पे एक बार सूर्य ग्रहण भी आया, तो 3.5 घंटे गुरुजी ने सूर्य ग्रहण में कीर्तन करवाया सबको। तो जब गुरु महाराज जी का वहां से प्रस्थान हुआ तो हमने ये कीर्तन किया, हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए, हूं अधम अधीन शरण अशरण अब शरण में लीजिए। तो शरणागति का कीर्तन सुन के मैंने देखा गुरुजी गदगद हो गए, हमारे साथ वो भी गुरुजी इसको रिपीट करने लगे। इसमें है, मुझ में है जप तप न साधन और नहीं कुछ ज्ञान है, निर्लजता है एक बाकी और बस अभिमान है। पाप बोझे से लदी नैया भंवर में जा रही, नाथ दौड़ो अब बचा लो
जल्दी डूबी जा रही। आप भी यदि छोड़ दोगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं, जन्म दुख से नाव कैसे पार कर पाऊंगा मैं। सब जगह मैंने भटक कर अब शरण ली आपकी, सब जगह मैंने भटक कर अब शरण ली आपकी, पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए, हूं अधम अधीन अशरण अब शरण में लीजिए। तो गुरु महाराज जी ने उस कीर्तन को सुन के एक प्रकार से हमें अपनी बॉडी लैंग्वेज से अप्रूव किया कि ये कीर्तन अप्रूव्ड। तो हमारे हिंदी भाषियों के लिए तो वैसे ही हिंदी कीर्तन गुरु कीर्तन बड़े काम, आ जाके तब तक हम वही करते थे, गुरु चरण कमल भजमान। बाकी ये जो कृपा बिंदु दिया करोई दासे, श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सदमा, वो तो करते ही थे। लेकिन हिंदी कीर्तन एक ही था, श्री गुरु चरण कमल भजमान। फिर ये ऐड हो गया, हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। फिर जब जब गुरु जी आते तो हम आरती भी इस कीर्तन के साथ करते। मुझे याद है 97 में जब गुरु महाराज जी वापस आए हैं विदेश यात्रा से, तो वहां आरती हुई इसी कीर्तन के साथ। तो ये जो गुरुदेव हैं, ये कौन है गुरुदेव, विचार करिए। गुरु महाराज जी कहते हैं कि प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी ने अपनी गीति लिखी वैष्णव के। वो क्यों लिखी? कहते एक उनके शिष्य निर्जन भजन के लिए चले गए, प्रभुपाद जी को बिना बतलाए। तो प्रभुपाद जी को किसी ने सूचना दी, प्रभुपाद जी ने कहा है, तो कहते वो निर्जन भजन के लिए गया, एकांत भजन कर रहा है, अकेला भजन कर रहा है। तब गुरु महाराज जी कहते हैं प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी ने ये गीति लिखी, दुष्ट मन तुम्ही किसिर वैष्णव। तो यहां इस गीति के अंदर प्रभुपाद जी ने अपना परिचय भी दे दिया। अब देखो हम भी पढ़ते हैं इसको, गुरु जी ने जो इसको पकड़ा, प्रभुपाद जी ने लिखा कि तुम निर्जन में गए, तो ये सिर्फ कपटता है, डिसीटफुलनेस है, ये जड़ेर प्रतिष्ठा है। लेकिन करना क्या है? शुद्ध भक्त का अनुगत के बिना कोई भी निर्जन भजन, कोई भी भक्ति की कैटेगरी में ही नहीं आती। दिस इज वेरी वेरी सैलिएंट पॉइंट टू बी अंडरस्टैंड। गुरु महाराज जी इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। हम कितना भी शास्त्र पढ़ लें, इस कंक्लूजन तक नहीं हम पहुंच सकते जो गुरु जी ने हमको बड़ी सिंपली बता दिया। गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि शुद्ध भक्त के अनुगत में राधा कृष्ण की सेवा होगी। दुष्टमन तुम्ही किशिर वैष्णव। उनको नहीं पूछकर तुम निर्जन में गए, पूछना तो चाहिए था। तो कोई भी हम काम करें जहां पे गुरुजी की सम्मति नहीं है, गुरुजी का सैंक्शन नहीं है, गुरुजी की जो आज्ञा नहीं मिली, वो भक्ति नहीं हो सकता। वो हमारी मनोधर्म हो सकता है, वो भक्ति की श्रेणी में नहीं आता। गुरु प्रभुपाद जी ने लिखा वो सिर्फ कपटता है, डिसीटफुलनेस। और यहां पे कैसे प्रभुपाद जी ने अपने आप को रिवील किया? राधा नित्य जन, राधा नित्य जन। गुरुदेव कौन है? राधा नित्य जन। इशारा कर दिया, गुरु जी कह रहे हैं, प्रभुपाद जी ने अपने स्वरूप की ओर इशारा कर दिया। राधा नित्य जन, ये गुरुदेव कह रहे हैं। तो जब तक तात्विक ब्रजवासी राधा नित्य जन जो षड गोस्वामी रूप मंजरी के अनुगत में, उनकी शरण में हम नहीं जाएंगे, तब तक कैसे होगा? जब मैं यूएसए में गया तो गुरुजी के साथ 24/7 रहने का मौका मिला।
सेवा ही कुछ ऐसी थी कि बिल्कुल गुरुजी ने अपने साथ ही रख लिया, सिर्फ मैं उनके कमरे के दरवाजे के साथ लग के बैठा रहता। तो सुबह सुबह अर्ली ब्रह्म मुहूर्त में गुरु महाराज जी की इतनी गंभीर आवाज आती, जैसे लगता है कि समुद्र की गर्जना हो रही है, समुद्र की लहरों की गर्जना की तरह गुरुजी प्रार्थना सुबह करते। तो उसमें एक प्रार्थना षड गोस्वामी अष्टक गुरु महाराज जी करते। कृष्णोत कीर्तन गान नरतन परो, प्रेमामृत प्रेमामृतांभो निधि, धीरा धीर जनो प्रियो प्रिय करो, निर्मत्सरो पूजितो, श्री चैतन्य कृपा भरो, भुवि भुवो भारावहन तारको, वंदे रूप सनातनो, रघुयुगो श्री जीव गोपाल को। वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गोपाल को। तो मुझे लगा कि मैं किसी दूसरी दुनिया में चला गया। ऐसा लग रहा था कि रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी, अपने गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, सारे गुरुजी के कमरे में उस समय उपस्थित थे, उनके सामने खड़े हैं और गुरुजी उनको आदर भाव से पुकार रहे, वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गोपाल को। और ये नहीं था कि एक बार, तीन तीन बार रिपीट कर रहे हैं, एक एक श्लोक को तीन तीन बार गुरुजी रिसाइट करते एवरी डे, ये षड गोस्वामी अष्टक। तो इसमें जब सेकंड में गुरुजी ने बोला, नाना शास्त्र विचारणेक निपुनो, सद्धर्म संस्थापको, लोका नाम हितकारिनो, त्रिभुवने मान्यो शरण्या करो, राधा कृष्ण पदार विंद भजनानंदे न मत्तालिको, वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गोपाल को। वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गोपाल को। वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गोपाल को। ये जो दूसरा है, इसमें पॉइंट टू बी नोटेड, मैं रूप सनातन आदि उन 6 गोस्वामियों की वंदना करता हूं जो अनेक शास्त्रों के गूढ़ तात्पर्य विचार करने में परम निपुण थे, भक्ति रूप परम धर्म के संस्थापक थे, जनमात्र के परम हितैषी, तीनों लोकों में माननीय, शरणागत वत्सल। देखो, हमारे षड गोस्वामी शरणागत वत्सल और हमारे गुरुजी भी शरणागत वत्सल, राधा कृष्ण के बदार विंद के भजन रूप आनंद के से मत मधुब के समान थे। तो यहाँ पे दुष्ट मन तुम्हें किसिर वैष्णव में गुरुजी कहते हैं, प्रभुपाद रिवील्ड हिज रियल सेल्फ। क्या बोला? राधा नित्य जन शरणागत वत्सल। तो उनकी कृपा के बिना हम क्या निर्जन भजन कर लेंगे? ये जिस प्रकार आज एक भक्त बता रहा था कि वो खुला, लॉकडाउन कहीं कहीं खुला, तो वो लिकर शॉप के बाहर इतनी लंबी लाइन थी कि उसमें माताएं भी खड़ी थी मुंह बांध के, वो भी कितने दिनों से वेट कर रही थी। तो वो कह रहा था कि जो लिकर का जो नशा ये कम है, इससे जो जो तंबाकू और वो जो दूसरी चीजों का सूखा नशा वो ज्यादा खतरनाक है। लेकिन मैं ये सोचता हूं, गुरु नानक देव कह गए, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। वो क्या नशा हुआ जो दिन रात ना चढ़े? ये वो नशा गुरु महाराज कह रहे हैं, जब तक हम राधा नित्य जन गुरुदेव का अनुगत नहीं करेंगे, हमारी शरणागति टेस्ट नहीं होगी। हम भगवान के श्री विग्रह की जितनी मर्जी अर्चना पूजा अर्चना करें, भगवान कभी नहीं कहेंगे कि भैया आप थोड़ा गलत कर रहे हो, उसको ठीक कर लो, अभी गर्मी शुरू होगी, थोड़ा पंखा लगा लो, एसी लगा लो। भगवान कभी नहीं कहेंगे। भगवान को हमने शाइन दे दिया और उनको अभी ठीक से ना उनकी लकुटी उतारी, ना उनकी बांसुरी उतारी और लाइट ऑफ। भगवान कभी नहीं कहेंगे। लेकिन गुरुदेव जो हैं वो डायरेक्टली हमें चेस्टाइज करते हैं। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि वास्तव शरणागति की परीक्षा है गुरुदेव में शरणागति।
जब तक सदगुरु में शरणागति नहीं होगी, इट्स नॉट पॉसिबल। और शरणागति की परीक्षा गुरुदेव हमें उसमें से पार कर सकते हैं। जब हम गुरुदेव में शरणागत होंगे, हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए, हूँ अधम अधीन अशरण अब शरण में लीजिए। तो गुरुदेव जब हमें कृपा करेंगे तो उसी समय वो शरणागति की परीक्षा होगी। शरणागति की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए गुरु कृपा ही केवलम एकमात्र हमारा अवलंबन है। इसलिए गुरु महाराज जी कह रहे हैं, श्रीवास पंडित से शरणागति शिक्षा लो, श्रीवास आंगन में हरिवासरे हरि कीर्तन विधान। गुरु महाराज जी ने लुधियाना में एक पैस टाइम किया। एक डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाने के बहाने बड़ी लंबे समय तक लुधियाना में प्रवास किया। हमारे लुधियाना के भक्तों ने, विशेष करके हमारे अनूप जी, अरुण जी और बाकी भक्तों ने मिलके, दवे जी, सब ने मिलके गुरु महाराज जी के लिए व्यवस्था की। एक कोठी किराए पे ले ली और हम भी उधर चले गए जम्मू से गुरु महाराज जी के साथ। वहां एकादशी आ गई और यही वाली एकादशी आ गई, मौनी एकादशी। तो गुरु महाराज जी कमरे में हैं और हमें कीर्तन के लिए बोला, तो मेरे को कीर्तन का मौका मिला, मैंने लगा दिया, श्री हरि वासरे हरि कीर्तन विधान। तो हमें कीर्तन तो आता नहीं है, लेकिन गुरु जी को ये कीर्तन पसंद है। इस आशा के साथ मैंने ये कीर्तन वहां शुरू किया। श्री हरिवासरे हरि कीर्तन विधान, नृत्य आरंभिला प्रभु जग तेरो प्राण, पुण्यवंत श्रीवास अंगने शुभारंभ, उठिल संकीर्तन ध्वनि गोपाल गोविंद, हरि ओ राम राम हरि ओ राम राम। गुरु महाराज जी का ये फेवरेट कीर्तन मैंने वहां प्रारंभ किया, श्री हरिवासरे हरि कीर्तन विधान। तो जब ये कंक्लूड ही हो रहा था, गुरु जी अपने कमरे से निकले और बाहर आए और उन्होंने अपना हरि कथा प्रारंभ की। तो कहा, अभी अभी जो कीर्तन हुआ, श्री हरिवासरे हरि कीर्तन विधान, तो महाप्रभु ने स्वयं हरिवासर तिथि एकादशी तिथि में संकीर्तन करने का विधान दिया। तो आज की तिथि में हमें संकीर्तन करना चाहिए। तो श्रीवास आंगन में सारी रात महाप्रभु ने संकीर्तन किया। ऐसा संकीर्तन हुआ कि पूरे ब्रह्मांड में उस संकीर्तन की ध्वनि गूंज गई। महादेव भी नृत्य करने लगे और सारे देवता वहां उपस्थित हो गए। महाप्रभु की गले की माला उनके नृत्य की ताल से छिन्न भिन्न होके भक्तों पे जाके गिर रही है और भक्त भी आनंद में मग्न होके वो हरि कीर्तन कर रहे हैं। तो हरि कीर्तन श्रीवास आंगन में प्रारंभ हुआ। ये एकादशी का विधान चैतन्य महाप्रभु ने किया इसको। तो गुरु महाराज ने एक बात कही, कहते अगर शरणागति की शिक्षा लेनी है तो श्रीवास पंडित से लो। श्री श्रीवास आंगन जब हम जाते हैं जोगपीठ, तो पहले श्रीवास आंगन प्रणाम करते हैं। श्रीवास आंगन में क्या है? श्रीवास पंडित का वो स्थान जहां पे महाप्रभु ने हरे कृष्णा मूवमेंट स्टार्ट की मोर देन 500 इयर्स बैक। श्रीवास आंगन में चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्ण मूवमेंट को प्रारंभ किया और उसको संकीर्तन रासस्थली बोला गया। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ महारास की, लेकिन श्रीवास पंडित के यहाँ भगवान कृष्ण राधा रानी का भाव लेके उन्होंने संकीर्तन रास प्रारंभ की, श्री हरिवासरे हरि कीर्तन विधान। तो वो जो सारी रात संकीर्तन किया महाप्रभु ने, तो एक बार
श्रीवास पंडित के घर में उनके इकलौते पुत्र की अकाल मृत्यु हो गई। जैसे ही ये घटना श्रीवास के कानों में आई, उन्होंने अपने घर वालों को सौगंध दे दी कि आप कोई भी किसी प्रकार का रुदन नहीं करना, मेरे महाप्रभु की संकीर्तन में बाधा हो जाएगी। तो इतना डिफिकल्ट काम, अपने इकलौते पुत्र की मृत्यु पे भी श्रीवास पंडित ये सोच रहे हैं कि महाप्रभु के संकीर्तन में बाधा ना हो जाए। सबको रोक दिया, कोई महाप्रभु तक ये बात नहीं पहुंचाएगा और कोई रोएगा नहीं। अब 16 साल के उस लड़के की डेड बॉडी श्रीवास पंडित के घर में अंदर पड़ी है और महाप्रभु ने अचानक भक्तों को कहा, आज मुझे संकीर्तन में आनंद नहीं आ रहा, कुछ हुआ तो नहीं? तब भक्तों ने महाप्रभु को ये बात बतलाई। ये सुन के इतने दुखी हो गए महाप्रभु, कहते तुम लोगों ने अपना सर्वस्व मुझे दे दिया, तुम लोगों के छोड़ के मैं कैसे जा पाऊंगा? ये सुन के ही श्रीवास पंडित जी समझ गए कि महाप्रभु ने अब के हमें छोड़ के जाने का मन बना लिया। तो आप जानते ही महाप्रभु ने उस बच्चे को जिंदा किया, जीवित होके उसने श्रीवास पंडित से बात की कि मैं इस जन्म में इसका पुत्र हूं, किसी जन्म में मैं इसका पिता बना, अभी मेरा आगे का कर्म प्रारंभ है, मैं वहां जा रहा हूं। तो सबके मन में सांत्वना हुई। तो श्रीवास पंडित की कितनी शरणागति। महाप्रभु जब चले गए जगन्नाथपुरी, तो श्रीवास पंडित पूरा साल वेट करते कब रथ यात्रा आएगी, कब हम पुरी जाएंगे महाप्रभु के दर्शनों को, क्योंकि महाप्रभु ने उनको आज्ञा दी थी कि आप रथ यात्रा पे पुरी आ सकते हैं। अब नवदीप धाम से पुरी जाने में 1 महीना पैदल यात्रा होती। सब गौड़ भक्त जो थे 1 महीना यात्रा करके नवदीप जाते और रथ यात्रा से लेके कार्तिक पूर्णिमा, रास पूर्णिमा तक पुरी में वास करते 4 महीने, और रिटर्न में 1 महीना लगता। तो टोटल 6 मंथ्स उनका जगन्नाथपुरी आने जाने रहने में लगता, और 6 महीने वो अपने घर में रहते। सोचो कैसा उनका गृहस्थ जीवन था। तो बड़े भक्तों ने महाप्रभु को श्रीवास पंडित जी के बारे में बतलाया कि हर समय वैष्णव सेवा, वैष्णव सेवा, वैष्णव सेवा। ये सोचते नहीं है इनके घर में कोई व्यवस्था है कि नहीं है, लेकिन इनके मन में हर समय वैष्णव सेवा ही लगी रहती है। तो भक्तों के कहने पे भगवान चैतन्य महाप्रभु ने एक दिन श्रीवास पंडित को एकांत में बुलाया, कहा तुम गृहस्थ हो, तुम गृहस्थ हो, तुम कैसे अपने घर को चलाओगे? तुम्हें रुपए पैसे की थोड़ी चिंता करनी चाहिए। ऐसे थोड़े होगा हर समय तुम वैष्णव सेवा। गृहस्थ को अपने धन के लिए सावधान रहना चाहिए। महाप्रभु ने बहुत शिक्षा दी। तो श्रीवास पंडित ने कोई जवाब नहीं दिया। तो श्रीवास पंडित का जवाब नहीं हुआ तो महाप्रभु ने कहा, मेरी बात समझे तुम? तब श्रीवास पंडित ने ऐसे 3 बार क्लैपिंग की। तो महाप्रभु ने कहा, क्या अर्थ? तो श्रीवास पंडित ने कहा, महाप्रभु अगर हमारे घर में खाने को कोई दाना नहीं होगा तो हम 1 दिन उपवास करेंगे, दूसरे दिन भी नहीं होगा तो दूसरे दिन भी उपवास करेंगे, और अगर तीसरे दिन भी नहीं होगा तो हम गंगा में डूब के मर जाएंगे। जैसे ही महाप्रभु ने सुना, महाप्रभु चित्कार कर उठे और एकदम श्रीवास पंडित को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे घर में कोई कमी नहीं होगी। तो इस प्रकार की शरणागति श्रीवास पंडित, जो षडंग शरणागति हई बेजहार, ताहर प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। ये गुरु महाराज जी का आदर्श गुरु जी ने हमें बतलाया। आप सोचिए, और गुरु महाराज जी बार बार ये कह रहे हैं कि ये जो
वैष्णव के गीति में प्रभुपाद जी ने कोई भागवत का श्लोक नहीं लिखा, कोई चैतन्य चरितामृत कोट नहीं की। क्या बोला? प्रभु सनातन परम यतने शिक्षा दिला जहां चिंत ए सब। सनातन शिक्षा की चिंता करने के लिए प्रभुपाद जी ने रिकमेंड किया। किसको रिकमेंड किया? जो निर्जन भजन करने के लिए बड़े ललायत हैं, एकांत में भजन करेंगे। हम तो बस भजन करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो कितनी बार प्रभुपाद जी ने उनको बोला सनातन शिक्षा। सनातन शिक्षा क्या है? संबंध ज्ञान। और वो संबंध ज्ञान क्या है? हर वक्त ये सोचना मैं गुरुदेव का हूं, मैं गुरुदेव का हूं, मैं भगवान श्री कृष्ण का हूं, मैं चैतन्य महाप्रभु का हूं। इंप्लीकेशन, आई डू नॉट बिलोंग टू दिस वर्ल्ड। मैं इस दुनिया का नहीं, मैं गुरुदेव का हूं, मैं महाप्रभु का हूं, मैं भगवान राधा कृष्ण का हूं। इस भाव में जब हम स्थिर होंगे, उसके बाद जो भी क्रिया करेंगे वो भजन होगा, वो भक्ति होगी। आपको पता है गुरु महाराज कितनी बार बोलते हैं कि एक एमए पास कैलकाटा यूनिवर्सिटी का एजुकेटेड व्यक्ति प्रभुपाद जी से दीक्षित होके, ब्रह्मचारी होके चैतन्य मठ मायापुर में आ गया और प्रभुपाद जी से बार बार कहता है मुझे भागवत आपसे सीखनी है, मुझे भागवत शिक्षा दीजिए, मैं भागवत सीखना चाहता हूं। प्रभुपाद जी ने उसकी बात की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। तो बहुत दिनों उसने बोलता रहा। तो एक दिन महाप्रभु ने, प्रभुपाद जी ने कहा, क्या तुम भागवत सीखना चाहते हो? जाओ रामदास के पास। तो कहता है रामदास कोई बड़ा एक्सपर्ट होगा, ही मस्ट बी वेरी बिग स्टॉलवर्ट भागवत पाठी। तो ढूंढने लगे रामदास जी कहाँ? रामदास कहते हो रामदास जी उधर गार्डन में। तो गए तो देखा बैंगन के खेत में वो खुरपे से मिट्टी खोद रहा है। तो देख के उसको लगा ये तो माली है, ये कहाँ मेरे को भागवत सिखाए। तो प्रभुपाद जी ने मेरे को कहाँ भेज दिया, किस बंदे के पास भेज दिया? मैं इतना एजुकेटेड आदमी हूँ, ये माली से मैं भागवत सीखूंगा? लेकिन प्रभुपाद जी ने कहा था, चले गए। कहते अब गुरु जी की आज्ञा पालन तो करनी पड़ेगी। अनमने भाव से वो गया। कहते रामदास प्रभु दंडवत प्रणाम। कहते हाँ जी बताइए। कहते महाराज वो प्रभुपाद जी ने भेजा है। अच्छा गुरुदेव ने भेजा है, बताइए क्या गया है? कहते गुरुदेव ने कहा है कि भागवत अगर आप मुझे सिखाते। तो कहते मैं तो भागवत बिल्कुल, मैंने कभी पाठ किया नहीं, मैं सुन जानते ही कुछ नहीं। तो कहता मैं भी यही कह रहा था, गुरुजी ने पता नहीं कैसे आपका नाम ले लिया। तो देखो उसको गुरु के वचनों पे विश्वास नहीं है। तो हमें लगता है कि जो हमारी कैटेगरी में नहीं आएंगे वो कुछ नहीं हमें सिखा सकते, हम किसी से सीख ही नहीं सकते। प्रभुपाद जी ने उसको भेज दिया रामदास के पास। आ गया वापस। प्रभुपाद जी ने गए थे? कहते हाँ जी। कहते वो क्या कहा उसने? कहते वो कहते मुझे कुछ नहीं पता। कहते उसको कुछ नहीं पता, उसी को सब कुछ पता है, जाओ दोबारा, गो बैक। चले गए वापस। गए तो कहते महाराज वो फिर भेज दिया उन्होंने, मैं क्या करूं, गुरुजी बार बार कह रहे हैं, मैं भी आना पड़ता है। तो रामदास ने कहा अब गुरुदेव की आज्ञा हुई है तो कुछ बोलूं। तो उन्होंने कहा ये जो मैं बैंगन लगा रहा हूं ना, ये जो बैंगन इसमें खेती हो रही है, बैंगन पैदा होंगे, ये बैंगन बाद में हमारे श्री श्री गुरु गौरांग गंधर्विका गिरधारी जी को भोग लगेंगे। मैं बस इतनी भागवत जानता हूं। That's all. And this is the essence of Bhagavad. This is what Prabhupada told this person. आप देखिए हम जो काम कर रहे हैं उस कर्म का फल अगर गुरु महाराज जी के पॉकेट में जा रहा है तो वो भक्ति है। हम कितना भी भजन कर रहे हैं। अब मेरे को एक गुरु भाई का फोन आया, वो कहता है जी कि वो बड़े भजनानंदी हैं, भजनानंदी। मैंने कहा यार भजनानंदी मुझे पता ही नहीं क्या होता है भजनानंदी। कहते भजन परायण है। मैंने कहा भजन का परायणता क्या होती है, मेरे को आज तक पता ही नहीं चला। मैंने गुरु महाराज जी से पूछा एक बार कि व्हाट इज दिस। तो गुरु महाराज ने कहा कि आप एक तराजू लो, उस तराजू में अपने सारे भजन, अपने साधन को एक तरफ रखो और एक साइड पे गुरु कृपा कटाक्ष रख दो। कौन भारी होगा? आपके करोड़ों जन्मों का साधन भारी होगा या गुरुदेव की कृपा का कटाक्ष भारी होगा, ये बता। अब देखो वो पंगु लंगे थे गिरम की बात है। कल वो बता रहे थे ग्वालपाड़ा के वो निताई दास प्रभु गूंगे थे प्रैक्टिकली,
He could not speak even at the age of 15. और आपको पता है इंडिया में जो इस तरह के बच्चे होते हैं उनको कहां भेज दिया जाता है, चलो चढ़ा दो मठ में। जिसका वो कहते हैं ना, जड़ भरत को भी उन्होंने बोला जाओ किसी काम का नहीं तो चल, तो भेज दिया गुरु जी के आश्रम में। गुरु महाराज ने उसके सिर पे हाथ रखा, बंदा बोलना तो छोड़ो, कीर्तन करना शुरू हो गया। अभी वो ठीक ठाक है, कीर्तन कर रहा है बढ़िया, हमने उसका वीडियो बना के लाया, कल आपको फोटो दिखा दी। व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड प्रैक्टिकली मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। ये है गुरु कृपा। देखिए, गुरु जी को हमने जब भी कहा, गुरु जी आपकी कृपा से ये गूंगा बोल रहा है, आपकी कृपा से ये कैंसर का पेशेंट ठीक हो गया, आपकी कृपा से इसकी आंख की रोशनी वापस आ गई, गुरु जी ने कभी इस बात को अपने ऊपर नहीं लिया। ही नेवर एक्सेप्टेड इट। वो कहते हैं ये भगवान की, गुरु जी की कृपा आप पे हुई, आप भक्त हैं, इसलिए आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने आप पे कृपा की। He never took credit for all the miracles he performed unmindfully। वो मिराकल ऐसे होती थी जैसे वो लुट रहा है ना, ऐसे। आज की जो कथा आप देखो, ये जो मोहिनी एकादशी की कथा क्या है, जो गुरुजी बोलते हैं अनुगत धर्म में होता है सारा काम। भगवान कृष्ण को युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, महाराज आज की एकादशी के बारे में बता दीजिए, वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी। तो भगवान कृष्ण बता सकते हैं डायरेक्ट, वो बताते नहीं है, कहते नहीं ये बात प्रश्न भगवान रामचंद्र ने पूछा था, वशिष्ठ जी को पूछा था, उनका आंसर मैं तुम्हें बताता हूं। दिस इज कॉल्ड अनुगत्य धर्म। आई एम नॉट अथॉरिटी, समवन एल्स इज अथॉरिटी, आई एम जस्ट रिपीटिंग हिज वर्ड्स। भगवान कृष्ण ने ये साधना की। हमने एकादशी के महात्म को इस पॉइंट ऑफ व्यू से कभी पढ़ा कि भगवान कृष्ण भी अनुगत्य में पढ़ रहे हैं। दिस इज कॉल्ड शरणागति शिक्षा। आप कल्पना कीजिए गुरु जी किस बात को पकड़ते हैं सूक्ष्म। हम कहते हैं जी मातम नहीं पढ़ना, अरे मातम की बात नहीं है, गुरु जी कह रहे हैं कि उसके पीछे भाव देखिए। भाव ये है कि अनुगत्य में बात होती है। गुरु महाराज जी का जो उन्होंने बुक लिखी चैतन्य एंड हिज एसोसिएट्स, इतनी बड़ी बुक, गौर पार्षदावली, बांग्ला में है, हिंदी में है, अब तो रशियन में भी प्रिंट होगी, स्पेनिश में जा रही है, वर्ल्ड की सारी लैंग्वेजेस में ये बुक जाएगी। श्री चैतन्य एंड हिज एसोसिएट गौर पार्षदावली, ये जो ग्रंथ है, ये ग्रंथ में बड़े सारे ग्रंथ है, मैं आपको दिखा सकता हूं। मेरे पास बाग बाजार गोड़ी मठ का भी एक ग्रंथ पड़ा है इसमें, गौर पार्षदावली, आई कैन शो यू। वो लाना येलो कलर का, वो पड़ा। डिफरेंट मठ में डिफरेंट गौर पार्षदावली छपी है। प्रभुपाद जी के टाइम से बड़ी किताबें छपी है गौर पार्षदावली। लेकिन भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी को बोधायन महाराज जी ने पूछा, महाराज जी आप हमारे गुरुजी वाले क्यों पढ़ते हो हर बार? गुरुजी का नाम लिया, इनकी गौर पार्षदावली में ऐसी क्या बात है जो बाकियों में नहीं है? तो भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज ने एक आंसर दिया, वो सुनने वाला है। कहते ये जो गुरुजी का नाम लिया, इन्होंने जो लिखी, इसमें एक ही बात ऊपर से लेके नीचे तक मुझे दिखाई देती है, दैट इज अनुगत्य धर्म। हमारे गुरु महाराज ने कोट किया भक्ति रत्नाकर, चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत, प्रभुपाद, डिफरेंट सोर्सेस को कोट करके वहां हमारे सामने ले आए। गुरु जी के सारे ग्रंथ ऐसे, ही हैज ब्रॉट फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस अनुगत्य धर्म। तो ये जो मोहिनी एकादशी का मातम आप देखिए, भगवान रामचंद्र जी वशिष्ठ जी को पूछ रहे हैं कि सीता के विरह जनित संताप से दुखी होके मेरे को कोई ऐसा बताइए कि मैं कुछ ऐसा व्रत करूं। तब उन्होंने वो स्टोरी सुनाई, कैसे वो जो भद्रावती नाम के धृतिमान राजा थे, उनके 5 पुत्रों में जो धृष्ट बुद्धि था वो बड़ा दुष्ट था, कैसे उसका पतित अवस्था में बड़ी बुरी हालत हो गई और कैसे उसका तार हुआ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आज की जो कथा में, एकादशी की कथा का बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि शोकाकुल दृष्ट बुद्धि जो था, वो गलती से भटकता भटकता कौंडिन्य ऋषि के आश्रम के बाहर भटकने लगा। उसी समय ऋषि गंगा स्नान करके वापस आ रहे थे। अब ऋषि जी के कपड़े गिले थे और उनकी कपड़ों से एक बूंद छिटक के उस दृष्ट बुद्धि के शरीर के ऊपर पड़ गई। तो क्या हुआ?
उस जल के स्पर्श से उसका सारा पाप तुरंत समाप्त हो गया, उसकी दुर्बुद्धि दूर हो गई, सुबुद्धि पैदा हो गई और पैरों में पड़ा। और ऋषि ने कहा, बेटा इस व्रत का पालन कर। व्हाट इज दिस? ये वही प्रूफ है। एक तरफ तराजू में आपने करोड़ों जन्मों का साधन करते रहो और एक तरफ गुरु कृपा कटाक्ष, एक बूंद उनके शरीर के जल की पड़ गई तो काम हो गया। वो बूंद के लिए तो ऋषि मुनि कितनी कितनी तपस्या करते हैं। इसलिए गुरु महाराज जी ये बार बार कह रहे हैं कि हमें इस बात को अपने साधन बल से ज्यादा गुरु कृपा बल को ही जोर देना है। और गुरु कृपा किसको मिलती है? जो गुरु जी के द्वारा शासित होकर चलता है। देखो कितने लोग हैं जो मेरे कल भी वो प्रभु जी बोले, सहदेव दास जी, कितना एजुकेटेड लड़का है, एमटेक है। वो कह रहा है कि मेरी गुरु महाराज जी से कभी कोई कम्युनिकेशन नहीं हुई, वार्तालाप नहीं हुई, गुरु जी से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं मिली, सब कुछ गुरु जी के फाइनल पेस्ट टाइम्स में ही उसको दीक्षा मिली। लेकिन उसकी रियलाइजेशन देखो कि गुरु महाराज जी ने उसकी इच्छा पूरी की। एट द टाइम ऑफ गेटिंग दीक्षा आल्सो, एट द टाइम ऑफ डूइंग अर्चन इन चंडीगढ़ मठ आल्सो, गुरु जी ने उसको सारा रियलाइज करवाया। इसको क्या कहते हैं? गुरु कृपा कटाक्ष। तो हम लोग जहां साधन करते हैं वहां गुरु कृपा कटाक्ष के लिए भी प्रयत्न करना चाहिए। देखो बड़े कम लोग हैं जिन्होंने गुरु जी ने डायरेक्ट कोई ऑर्डर दिया, जाओ। जैसे वो हमारी रेवती देवी दासी फ्रांस की, कहती मैं गुरु महाराज जी के पास जाती, मैं प्रार्थना करती, गुरु जी गिव मी सम इंस्ट्रक्शन। तो कहती मुझे लगता गुरु जी मुझे कहते गो एंड ओपन ए टेम्पल इन फ्रांस। मुझे इस तरह की इंस्ट्रक्शन चाहिए थी, लेकिन गुरु जी ने ये इंस्ट्रक्शन ना देके बड़ी सिंपल सी बातें उसको कही, शरणागति की बातें कही उसको। तो व्हाट इज दिस? गुरु महाराज ने बड़े कम लोगों को इंस्ट्रक्शन दी है कि तुम जाओ ग्वालपाड़ा धाम में, जाओ वहां पे सेवा करो, किसी को कोई सेवा दी, गोकुल की सेवा दी। तो जिनको वो सेवा मिली है समझो कि उनका जीवन है। हम लोग तो उनकी सेवा में उनके सहायक बन जाए, इतना भी हमारा जन्म सफल हो जाता है। इसलिए परम गुरु महाराज जी ने अपने एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ श्री चैतन्य गौड़ीय मठ में लिखा, फ्यूचर स्कीम, लास्ट पैराग्राफ, फ्यूचर स्कीम में लिखा, टू एस्टेब्लिश मठ इन बॉम्बे, टू एस्टेब्लिश मठ इन बैंगलोर, टू प्रीच ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो हमने इस बात को पकड़ लिया और गुरु महाराज जी के साथ बॉम्बे भी गए, बेंगलोर भी गए, बाहर भी गए। तो गुरु महाराज जी ने परम गुरु जी के कारण इस बात को किया। परम गुरु जी ने कहा था, लिखा था, इसलिए गुरु जी ने इस बात को कहा। तो मेरे कहने का मतलब है, हरि वासरे हरि कीर्तन विधान तभी होगा जब शरणागति की परीक्षा पूर्ण होगी कि गुरु द्वारा शासित होकर जो जीवन गुजारेगा, गुरु के वचनों पे अपनी जिंदगी को सैक्रिफाइस करेगा, जो गुरु के वाणी को कहते हैं ना अविचार से पूर्ण करेगा, अपने दिमाग से नहीं पूर्ण करेगा। नहीं गुरु जी ने मुझे क्या कहा, इसकी ये इंटरप्रिटेशन है, इसकी वो इंटरप्रिटेशन, नो, अपनी बुद्धि नहीं लगानी। गुरु जी ने जो कह दिया है सिर आंखों पे, उसी को हमने करना है। तो उसी के साथ हमें इसको करना है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।